This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes, good evening. This is the last unit of first block, MST 005. And this unit is also important for examination. I think it is at least 10 marks. So you will prepare for that, and it is so simple. So some other sampling techniques. Yesterday we have studied simple random sampling, stratified random sampling. Simple random sampling is used when the population is homogeneous, and stratified random sampling is used when the population is heterogeneous. First of all, we divide the whole population into the homogeneous group called stratum, and then we apply the simple random sampling, and in which we also study the allocations, equal allocation, proportion allocation, Neyman allocation, and optimum allocation. And we can draw the sample size from the each data according to these allocations. Now the next sampling is in your course is the systematic sampling. Systematic sampling. So as just the name of that one, systematic. The sampling in which we draw the unit a certain pattern is called the systematic sampling. In systematic sampling, first unit is drawn randomly and the rest unit of the sample are automatically selected according to pre-designed pattern. मतलब फर्स्ट यूनिट तो हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे और अदर जो यूनिट्स हैं बाकी वो हमारी क्या होगी एक पैटर्न के थ्रू. जैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे kth वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू आपकी मान लो 5 सेलेक्ट होती है, फिर आप हर फोर्थ यूनिट आपको लेनी है, तो फिफ्थ, फिर 9th, फिर 13th, फिर 17th, this one. So it is called because यहाँ पे हम we select unit in a systematic manner, so it is called the systematic sampling. Okay, so in this whole just one random sample, systematic random sampling is a complete commonly employed if complete and up to data list is available. Okay, तभी हम यूज कर पाएंगे इसको जब हमारे पास complete or up to date list of population unit is available. In systematic sampling, random sampling, first unit is selected with the help of random method and the rest being automatically selected according to predetermined pattern. Okay, so this systematic sampling is a kind of mixed sampling, partly probability and partly non-probability. तो कुछ तो हम with the help of random number choose कर रहे हैं, बाकी automatically कर रहे हैं. चलिए, so this method is two types, linear systematic sampling and circular systematic sampling. अब कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज करेंगे ये हमें देखना है. If capital N denote the population size and small n denote the sample size, and n is such that capital N, we can write the capital N is such that n into k. If, then we use the linear systematic sampling. If it is not, then we use the circular systematic sampling. Okay, so now it means that if capital N is a multiple of sample size, then we go for the linear. If it is not, then we go for the circular. अब कैसे इसको अप्लाई करना है ये देखते हैं. Yes, so first of all we find the value of k. Suppose n, capital N is 30
स्मॉल n is suppose 5. So capital N can be written as in the form of n. So n is equal to 30 and we can write as 30 is equal to 5 into k and k is equal to 6. Okay. So now in this linear systematic sampling, first unit is selected less than equal to 6. जो हम randomly select करेंगे वो less than equal to 6 होगा. तो it may be 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to k. k is equal to 6. 6 तक कोई भी एक यूनिट हम चूज कर सकते हैं. सपोज हमारे पास वो 2 निकल के आया, सेकंड आ गया, देन तो फर्स्ट यूनिट रैंडम सेलेक्ट हो गई एंड अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पलिंग द रेस्ट यूनिट आर selected automatically by predetermined pattern. तो पैटर्न क्या है? पैटर्न है कि you have to select every kth unit. It means that second unit one, which one? 2 plus k. It means 8. Then 8 plus k. It means 14. Then 20 and so on. Okay. This is the procedure of linear systematic sampling. Last examination, one question has been come from the linear systematic sampling, but most of the student draw only one sample. जबकि उस क्वेश्चन में इंडिकेट था कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल, और मोस्टली स्टूडेंट ने क्या किया, एक सैंपल जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया वो कर दिया. तो हमें जब ऑल पॉसिबल सैंपल लेने होंगे तो हमें रैंडम स्टार्ट भी हमें सभी लेने पड़ेंगे. तो पहले 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5, 6. तो हमारे इसमें कुल मिला के 6 सैंपल बैठेंगे ऑफ साइज 5. ओके, तो आपको सब दिखाना इसमें जीरो भी ले सकते हैं? यस सर इसमें जीरो भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि लेस देन बोला है 6 से. नहीं, एक्चुअली जीरो ले सकते हैं, नहीं ले सकते? नहीं, जीरो नहीं होगा क्योंकि हम जो पॉपुलेशन को नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. आप जब इसको नंबरिंग करोगे, मान लो 30 हमारे पास पर्सन है या हाउस है, तो हम सबसे पहले उन पे नंबरिंग करेंगे 1, 2 अप टू 30 तक. तो हमें जो स्टार्टिंग है वो 1 से ही लेना पड़ेगा. तो 1 to 6 तक ले सकते हैं. ओके, तो बस इतना ही है इसमें, बहुत इजी है ये, है ना. अब प्रॉब्लम क्या है कि कभी जब n नॉट इक्वल टू n के होता है तब से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. लीनियर सिस्टमैटिक में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल भी शायद कोट किया हुआ है, उसी को देख लेते हैं. यस, n इज इक्वल टू 17, n इज इक्वल टू 17 है और कैपिटल N, और हमें सैंपल लेना है कितने का? वो लेना है 4 का. तो देन हियर n नॉट मल्टीपल ऑफ स्मॉल n. सो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें, वैल्यू निकालें इसकी, तो 17 डिवाइड बाय 4, इट मींस दैट 4.25. तो 4.25 मतलब 4 से बड़ा, 4 से बड़ा इंटीजर कितना है? 5. तो हम इसको 5 पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. तो अगर k की वैल्यू को हम 5 लेते हैं तो हमारा जो रैंडम स्टार्ट होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है. चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं. अगर हमारे पास रैंडम स्टार्ट 1 है तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी होगी? 1 प्लस k यानी 6. फिर नेक्स्ट यूनिट होगी 6 प्लस k यानी 11. फिर नेक्स्ट यूनिट होगी 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 मतलब 17. तो कितने का सैंपल लेना था? 4 का सैंपल लेना था. हमारा फर्स्ट सैंपल आ गया 1, 6, 11 और 17. अगर रैंडम स्टार्ट 2 होता तो फिर होता 7, यहाँ पे 12 और फिर 18, पर 18 यहाँ पे हमारे पास नहीं, सॉरी 1, 6 यहाँ पे होगा 16, सॉरी, और यहाँ पे होगा 17. ठीक है, ये भी ठीक हो गया. अगर रैंडम स्टार्ट 3 से होता, 3, 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18. तो यहाँ पे 18 तो हमारे पास नहीं है. तो फर्स्ट 2 सैंपल तो हमारे 4 के आ गए, पर थर्ड सैंपल हमारा कितना है? केवल 3 यूनिट्स का आया. ऐसे अगर 4 होता
तो 4, 9 और 14, ये भी 3 का आया है। कितने सैंपल पॉसिबल थे? 1 2 3 4 5। अगर 5 स्टार्ट करते तो 5, 10 एंड 15। तो हमारे केवल 2 सैंपल ही ऐसे हैं जो 4 के आ रहे हैं, बाकी जो 3 सैंपल्स हैं वो 4 के नहीं आ रहे, जबकि हमें जो रैंडम सैंपल सॉरी जो सैंपल ड्रॉ करने थे वो 4 का ड्रॉ करना था। तो ये ड्रॉबैक है अगर ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो फिर कंसेप्ट में आया सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कि आप जो यूनिट्स हैं उनको आप सर्कुलर मैनर में अरेंज कर लें। मतलब कि जो यूनिट्स हैं आपकी उसको आप ऐसे बनाइए, यहाँ पे 1 डालिए, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे मान लेते हैं 17। तो जो फिर 70 के बाद 18, फिर 19, फिर 20, 21 एंड देन इस तरह से आप सर्कुलर में ले सकते हैं। अब क्या होगा अगर सर्कुलर में हम कंसीडर करते और हमारा रैंडम स्टार्ट 3 से स्टार्ट होता, तो 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18। तो 18 तो यूनिट हमारी क्या है, तो 1 हम 18 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, तो यानी हम फिर 1 ले लेते हैं। ओके, अगर हमारा 4 होता तो 4 9 14, 14 + 9 19, 19 मतलब 2। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द सर्कुलर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सर्कुलर में एक पॉइंट और अलग है, जो हमने रैंडम स्टार्ट किया है, आई जो हमने लिया है, जिसे हमने फर्स्ट रैंडमली सेलेक्ट किया है, इसको बोलते हैं रैंडम स्टार्ट। वो हमारा पहले वाली में तो लीनियर में तो था 1 से लेके जो आई है वो के तक हो सकता है। ओके, पर जो हमारी सिस्टमैटिक है वहां पे जो आई है वो 1 से लेके और कैपिटल एन तक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सैंपल जो है वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द लीनियर सिस्टमैटिक सैंपल। तो आई को आप 1 से लेके एन तक कोई भी ले सकते हैं। अगर मान लो मैं 17 ले लेता हूं तो 17 + 5, 17 + 5 मीन्स 22 और 22 का मतलब हो गया कितना, ओके सर 22 यानी 5। 22 तो कोई यूनिट नहीं है, 5 5 ले लेंगे तो 17 5, फिर ऐसे 5 के आगे 5 + 10 और 10 के आगे 15। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 यस, तो यहाँ पे हमारे 17 सैंपल पॉसिबल हुए, जबकि जो हमारा लीनियर था वहां पे केवल हमारे कितने सैंपल पॉसिबल थे, वो के इक्वल थे। यहाँ पे जो सैंपल होंगे पॉसिबल वो एन के इक्वल होंगे, कैपिटल एन के। ओके, तो ये हमारा हुआ सर्कुलर। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, बिल्कुल सिंपल ही है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लीजिएगा। एडवांटेज तो इजी है बहुत, क्योंकि एक ही वन ही हमें रैंडम लेना पड़ा, बाकी सब ऑटोमेटिकली आ गए हमारे पास। द मेन डिसएडवांटेज इज दैट are not generally random sample. Generally random sample नहीं है. The sample size is different from that required if n is not multiple of capital N is not multiple of small n. मतलब systematic अगर सर्कुलर तुमने बना लिया, अदरवाइज हम इसमें अगर ये मल्टीपल नहीं था तो हम इसको नहीं निकाल पा रहे थे। एंड नेक्स्ट इज in systematic sampling the sample mean would not be an unbiased। जो sample mean आता है वो unbiased estimator नहीं होता है। We cannot obtain unbiased estimate of variance of the population। और मेन ये तो खैर थोड़ा सा हाई है, आपके मतलब के नहीं है ये वाला ज्यादा सैम्पलिंग फ्रेम। It may provide highly biased estimate if the sampling frame has a periodic feature। periodic feature means कि अगर बाय द वे जो यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में उनमें पीरियोडिक फीचर्स हैं। पीरियोडिक फीचर्स मींस कि 5th प्लेस वाले यूनिट और 10th प्लेस वाले यूनिट बिल्कुल सेम है। तो अगर ऐसा कोई पीरियोडिक फीचर है और वो हमारे पीरियोडिक फीचर से मैच कर गया, के से मैच कर गया, तो सारी यूनिट आइडेंटिकल आ जाएंगी हमारे पास। और आइडेंटिकल आएंगे तो उससे हमारा जो सैंपल है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा पॉपुलेशन का। और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो फिर वो करेक्ट रिजल्ट भी नहीं देगा। ओके, जस्ट ए मिनट, कोई शायद किसी को ऐड करना है। There, there, there.
यस, प्रॉपर्टीज इनकी जरूरत नहीं है हमको पढ़ने का। इसका न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है इसका। यस, in a class of statistics, total number of student is 30. Select a systematic random sample of 10 student. The age of 30 student is given below. So here total size is 30 and we have to select 10 student. So here 10 is 30 is multiple of 10. So we can go through the linear systematic sampling and we observe that k is equal to 30. 3. Yeah, it is k is equal to capital N upon small n is 10 yani 3. So now k is equal to 3. So we can choose any number 1 to 3 for random start. Suppose it is 1, then 4th, then 7th, then 11th, and so on. If you start 2, then and if you सर start 10 आएगा ना? 1 4 7 10 not 11. yeah, sorry, 1 4 7 10. Okay, 1 means first student 22, 4th means 1 2 3 4th 21, 7 means 24th. So this you can find out, you can select the systematic random sample with the help of this formula. And in this question he or she also introduce find the mean of the sample. So first of all you have to draw the sample and find the mean. मीन भी निकाल सकते हैं आप, उसका वेरिएंस का वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। जो भी आगे वो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पूछता है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर दैट सैंपल। अगर वो ऑल कहता है तब आपको 1 से स्टार्ट करके और k तक करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये आप ट्राई करिए अपने आप। चलिए ये हो गया आपका। फिर आता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग जैसा नेम है फिर वही आ गया, जैसे सैंपलिंग है सबके नेम की बेस पे ही है। जैसा नेम है वैसे ही उसको नाम, मतलब नाम ही उसका ऐसा रखा गया है जो वो वर्क करता है। इफ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉट अबाउट द यूनिट बट इट इज क्लस्टर ऑफ द यूनिट्स। हमारे पास क्लस्टर हैं, ग्रुप्स हैं यूनिट्स के। एक क्लस्टर ये है, दूसरा क्लस्टर ये है, तीसरा क्लस्टर ये। तो इन दिस क्लस्टर यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट some clusters from all the clusters। मान लीजिए 2 इसमें से निकाल, then कोई भी 2 आ गए हमारे पास, then we select all the units of these clusters in the sample। okay, so this is technique is known as the cluster sampling। यहाँ पे जो क्लस्टर हैं जनरली तो ये बने हुए होते हैं। अगर बाय द वे बनाना होता है क्लस्टर मतलब ग्रुप बनाना होता है, तो ग्रुप तो हमने बनाए हैं, कहाँ बनाए हैं? स्टडीफाई रैंडम सैंपलिंग में हमने ग्रुप बनाए थे। तो यहाँ पे थोड़ा डिफर है। स्टडी रैंडम सैंपलिंग, स्टडीफाई रैंडम सैंपलिंग और हमारी क्लस्टर सैंपलिंग दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। वहां पे हम कहते थे कि जो हमें ग्रुप बनाने हैं दे शुड बी होमोजीनियस विद इन and between heterogeneous, where in the cluster sampling when we form the clusters then they should be heterogeneous, and between the homogeneous। ओके, यानी जो ग्रुप बनेगा बिटवीन तो नहीं खैर मैं कह पाऊंगा, जो ये इसमें यूनिट्स लेनी है वो हेट्रोजीनियस लेनी है। ओके, और देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट सम क्लस्टर एंड देन
each unit of the selected cluster is taken as the sample. चलिए इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेडिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो एक तो आप बताएंगे फॉर्मेशन, कि फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। दूसरा आप बताओगे सैंपल सिस्टमेटिक सॉरी स्टेडिफाइड में आपने क्या किया था, जब आपने स्टेडिफाइड की थी तो हमने पहले ग्रुप्स बनाए थे, तो ग्रुप तो यहाँ भी बना रहे हैं, फिर हमने कुछ यूनिट्स ली थी ग्रुप्स में से, हर ग्रुप में से कुछ यूनिट्स हमने सिलेक्ट की थी। पर यहाँ पे क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा क्लस्टर ले लेते हैं और देन ऑल द सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम द सेलेक्टेड क्लस्टर। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं, इसमें कोई थ्योरी मतलब थ्योरी तो यही रहेगी। यहाँ पे कहीं पे होमोजेनियस वर्ड यूज हुआ है क्लस्टर के लिए, ये पिछली बार ऑब्जेक्टिव में आया, द यूनिट्स ऑफ द क्लस्टर शुड बी होमोजीनियस, तो वो फॉल्स था, हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे कहीं पे रोंग लिखा हुआ है, यहाँ पे होमोजीनियस, यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि द क्लस्टर शुड बी हेट्रोजीनियस देमसेल्फ। ओके, यहाँ यूनिट लिखा है ना, देमसेल्फ हेट्रोजीनियस लिखा है, उल्टा लिखा है यहाँ पे। मैं क्या करूं, फिर कुछ नोट्स में भेज दूंगा आपको जो इसके सही नोट्स हैं। क्लस्टर सैंपल क्लस्टर शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, तो चलो ठीक है, इसमें और कुछ आपको नहीं करना है, सीधा न्यूमेरिकल कर सकता है। यस, टू डिटरमाइन द यील्ड रेट ऑफ wheat in a district of Punjab, 6 groups are constructed of 6 plot। 6 ग्रुप बनाए 1 to 6 और each group contains 6 plots। Select a cluster of 3, यहां से 3 का क्लस्टर लेना है। चलिए ले लेते हैं कोई भी, सबके आंसर अलग अलग आएंगे। मान लीजिए 1 ले लिया मैंने, फिर 3 ले लिया मैंने और 4 ले लिया। फिर क्या कह रहा है, क्लस्टर सेलेक्ट हो गए, फ्रॉम द गिवन डेटा एंड फाइंड सैंपल मीन। अब इस सैंपल मीन मतलब सैंपल में क्या करते हैं, हम पूरा क्लस्टर का क्लस्टर ले लेते हैं और फिर उनका मीन निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंबाइंड मीन। आपने पढ़ा था जब अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग ग्रुप्स दिए हो तो वहां वी यूज द कंबाइंड मीन, तो हम इससे निकाल सकते हैं x1 x। पहले आप फर्स्ट ग्रुप का मीन निकालिए, फिर सेकंड ग्रुप का मीन निकालिए जो भी आपके सेलेक्ट हुए हैं, पहले फर्स्ट का निकालिए, फिर थर्ड का निकालिए, फिर फोर्थ का निकालिए और फिर n1 करके भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका न्यूमेरिकल ये भी आया हुआ है। ओके, तो बड़ा सिंपल है, बस आपने उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्लस्टर सैंपलिंग में करते क्या है। तो आप ये भी कर सकते हैं। लास्ट 2 स्टेज सैंपलिंग, यहाँ पे भी कुछ लग रहा है 2 स्टेज। इफ वी सेलेक्ट द सैंपल इन स्टेजेस देन इट इज कॉल्ड द स्टेज सैंपल या मल्टी स्टेज सैंपल। अगर 2 स्टेज में कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड द 2 स्टेज सैंपल। अगर 3 स्टेज में कर रहे हैं 3 स्टेज सैंपल। अगर मोर देन 2 कर रहे हैं तो उसे भी मल्टीपल में डालते हैं, मल्टी स्टेज सैंपल। अब ऐसी सैंपलिंग कहाँ पे यूज होती है, जनरली स्टेज सैंपलिंग ये होती है कि जब हम वाइड में से कोई स्मॉल चीज निकालते हैं और डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए कानून ये जो कृषि कानून चल रहा है इसके ऊपर हमें सर्वे करना था, ठीक है। तो आपने देखा होगा जनरली यहाँ पे पंजाब के लोग लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम पूरी इंडिया में सर्वे करें, ठीक है। तो सबसे पहले पूरी इंडिया में सर्वे करें या हम रैंडम सैंपल के बेस पे सर्वे करें, सैंपलिंग के बेस पे। तो फिर सबसे पहले क्या किया, पूरे इंडिया को उन्होंने डिवाइड कर दिया स्टेट्स में, ठीक है। तो पहले उन्होंने कोई भी 5 स्टेट चूज करी, तो 5 स्टेट हमारे पास आ गए। फिर देन अब स्टेट तो आ गई, तो ये हुआ हमारा प्राइमरी स्टेज। पहले हमने स्टेट चूज करी, देन फिर हर स्टेट जो भी चूज हुई थी स्टेट्स हमारी, उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट चूज करें। तो डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा सेकेंडरी, सेकेंड स्टेज यूनिट। हमें पहुंचना है फार्मर तक, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में से कुछ फिर विलेज चूज करें, पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं लिया, उसमें से भी कुछ विलेज निकाल लिए और फिर उस विलेज में से भी कुछ फार्मर निकाल लिए। तो इस तरह से हम सैंपल हर स्टेज पे हम सैंपलिंग करते आ रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द मल्टी स्टेज सैंपलिंग। और जो फर्स्ट स्टेज पे होगा उसे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, इस तरह से हम इनके नेमिंग करेंगे। तो दिस इज द फंडा फॉर द स्टेज, 2 स्टेज या मल्टी स्टेज सैंपलिंग।
आप ये पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल, मैंने समझा दिया इजीली वे में। इसमें क्या है कि क्लस्टर में इसमें क्या डिफरेंस है, क्लस्टर में तो हम पूरा का पूरा क्लस्टर ले लेते थे, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम पूरी स्टेट लेते, पर हम यहाँ पूरी स्टेट नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें से वी अगेन सैम्पलिंग, we do again sampling to select a district, some districts. So instead of enumerating all the units in selected cluster, one select a subsample of identified and specified unit from the selected cluster. Okay, by the same or different sampling method. Same sampling method भी use कर सकते हैं, simple random sampling, और different भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर choice। चलिए, तो ये भी हो गया आपका। इसके कुछ क्वेश्चन है क्या? Yes. Select a sample of size 6 from the 36 units. Give an example number 2 divided in 6 cluster थे ही बने हुए। कह रहे एक सैंपल निकालो, select a sample of size 6 का निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको क्लस्टर चूज करना पड़ेगा, कोई भी दो। कितने का कह रहा है सैंपल लेने के लिए? ये कह रहा है व्हाट आर सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ 6 लेना है, इतना यूनिट। ओके, तो 6 यूनिट का सिलेक्शन करना है आपने। तो 6 यूनिट का सिलेक्ट करने इस टू स्टेज फॉर्म में। तो पहले हम क्या करें, हमारे पास 6 ग्रुप थे, तो हम इसमें से कुछ ग्रुप ले लेते हैं। तो कितने ग्रुप लेना चाहते हैं? चलिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए हमारा एक ये सिलेक्ट हो गया, एक ये सिलेक्ट हो गया और एक ये सिलेक्ट हो गया, 6 सेलेक्ट हो गया। फिर क्या करता, क्लस्टर में तो हमने सारे सारा ग्रुप ले लिया था यहाँ पे, पर ये कह रहा है कि आपको 6 यूनिट सेलेक्ट करनी है 2 स्टेज से। तो क्या करें, 6 यूनिट लेनी है तो 2 इससे ले लेते हैं, 2 इससे ले लेते हैं और 2 इससे ले लेते हैं। जरूरी नहीं आप 2 ले, इससे आप 3 ले सकते हैं, इससे 1 ले सकते हैं, इससे 2 ले सकते हैं। ओके, पर जनरली क्योंकि सैंपल इनका साइज एक था, इसलिए हमने सबको वेटेज बराबर देते हुए 2 2 का सैंपल ले लिया। अगर सैंपल 7 का लेना होता तो फिर इससे 2 ले लेते, इससे 2 ले लेते, इससे 3 ले लेते, कोई भी 2 यूनिट यहाँ से उठा लो। तो 2 यूनिट मान लेते हैं 13 और 31 आ गए यहाँ पे। 2 यूनिट्स हमने इससे ले ली, मान लेते हैं 18 और 10 आ गई, फिर ऐसे ऐसे ले लिया। फिर उनका मीन का आएगा, मीन निकाल देंगे, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 6, तो मीन आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी आ सकता, मतलब इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो बहुत इजी था ये, मेरे ख्याल सैम्पलिंग ही सारा इजी है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक बहुत जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत छोटे न्यूमेरिकल हैं, आप आराम से कर भी सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये पूरा हुआ आपका। तो मैं अभी इसका 4th ब्लॉक नहीं ले रहा हूँ, 4th ब्लॉक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी वीडियो शेयर कर दूं। मैंने जो पिछली बार क्लासेस ली थी बहुत डिटेल में ली थी, तो आप उनकी वीडियो देख लीजिएगा। मैं वीडियो ग्रुप पे मैसेज सेंड नहीं करूंगा, मैं केवल आप ही लोगों को वीडियो दूंगा, बाकी जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको मैं कोई वीडियो नहीं दे रहा हूँ। तो आप मुझे आप सेपरेट मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। चलिए, सर MSP 005 वाला गूगल ड्राइव या 4 भी है अभी? मेरे पास तो सब है, जो आपको चाहिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। मैं सर दिस इज शिशिर दिस साइड। जो रिचा मैम ने जो क्लास लिया था वो एक्चुअली काफी कम समझ में आया। मैम का जो स्पीड था काफी फास्ट था, और मैं बहुत स्लो हूँ। ठीक है, तो अगर उनका क्लास का वीडियो मतलब मिल जाए, हाँ मैं भेज दूंगा। उनका काफी फास्ट था। मेरे पास सब वीडियोस हैं, मेरी खुद की हैं। मैंने सेकंड सेक्शन मैंने पूरा खुद पढ़ाया है, राजेश जी वाला सब मैंने खुद पढ़ाया था लास्ट ईयर। अब में टाइम कम है तो मैं प्रॉपर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मैं मेरी स्पीड भी थोड़ी तेज की है क्योंकि मैं आपका पढ़ाना बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन बाकी इतना समझ में नहीं आता है। वेरी फ्रैंक, आई डोंट नो अदर बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है। हमें भी सर का ही समझ में प्रैक्टिकल आता है, एग्जांपल प्रभात सर का ही समझ में आता है। हाँ, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल देना हमें समझ में आता है। बाकी टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ाते जाते हैं, वो क्या है रेसिपी, क्या है ये है वो है, बस से खत्म कर रहे हैं। तो वो तो हम पढ़ सकते हैं अपने अपना। चलिए कोई नहीं, मैं आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मेरी ड्राइव में है सब, तो जो भी आपको चाहिए आप
मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जस्ट आपको भेज दूं, ठीक है। तो वो बहुत सर डीप तो आपको अलग से भेजना, मैं ग्रुप अ, में सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैसेज बेटर, हाँ मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करना कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर दीजिएगा। ठीक है सर, ओके, फिर रिज्वाइन कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि खत्म होने ठीक वाला है है। सर। ओके, देव ने तो भेज दिया शायद।